ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇਗੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾਸਤ ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਗਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ज़्यादा हो गया गई ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਫੋਰਡ ਦਾ, ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ ਦਾ, ਹੋਰੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਹੈਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫੋਰਡ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਗਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਡੀਲਰ ਨੇਗੇ ਫੋਰਡ ਦੇ, ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ, ਵੇਖਿਓ ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਪਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਟਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੱਥ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਐਸੀ ਸੀ, ਪਕੜ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵੀ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ? ਥੋੜੀ ਚਲੋ ਗੱਲ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੰਗੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। कितना समय हो गया आपको इस लाइन में आए हुए? मैं इस लाइन में, मैकेनिकल लाइन में 1963 में आ गया था। 63 में? हाँ, 1963 की बात है। जी हाँ। अच्छा, एज कितनी, उम्र कितनी हो गया? अब 74 चल रही है। 74 चल रही है, मतलब बचपन से ही हो? हाँ, मतलब उस टाइम में कक्षा 7 में था, 7वीं क्लास। हाँ। और क्यों मेरे जो ब्रदर थे, मतलब रिलेशन में थे वे, उनकी वर्कशॉप थी। उस टाइम गाड़ियाँ बहुत कम, ट्रैक्टर तो बहुत कम थे उस टाइम में। अच्छा। उस टाइम में ज़्यादातर पावरिन, फर्गूसन और क्या नाम लेते हैं ये मैसी, ये लांज और क्या नाम DT 28, DT 24, ये ट्रैक्टर थे उस टाइम पे। अच्छा। तो हम ज़्यादातर काम जो करते थे वो टाटा का, लीलैंड का करते थे। अच्छा। तो उसके बाद में हमने जो है काफ़ी टाइम के बाद में फिर ऐसा हुआ कि हमारी जो है उनसे बिगड़ गई बात। टाटा वालों? नहीं, भाई साहब। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो भाई साहब से बिगड़ गई। तो ऐसे ही मैं 1967 में जो है एस्कॉर्ट चला गया। अच्छा। फरीदाबाद 19/6 पे जो है, हाँ, वहाँ चला गया। अच्छा। क्योंकि उस टाइम जो था ना वहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह जो है सब वहीं असेंबल होते थे। ट्रैक्टर, एक्सरे मशीन और रेलवे कपलर, शॉकर, ये सब चीज़ जो थी ये 19/6 वो 18/6 पे ही होती थी। वहाँ भी हाँ, आगे राजदूत प्लांट था, सिर्फ इनके यही 2 प्लांट थे। पीछे 3rd प्लांट था जिसमें ट्रैक्टर असेंबल हो गया था। हाँ। और जिस टाइम मैं गया उस टाइम तो ट्रैक्टर इसी तरह असेंबल होता था जैसे कि अब हम करते हैं। अच्छा, यहाँ जैसे हाँ, वर्कशॉप पे होता है। हाँ, जैसा हम करते हैं। अच्छा। अब तो लाइन है, अब तो लाइन है, बहुत मशीनें आ गई हैं, काफी कुछ। मशीनें आ गई। अब तो ट्रैक्टर ही रंग में डिप होके निकल जा। हाँ। तो मैं तो बहुत टाइम पहले, अच्छा, छोड़ने का कारण जो बना वो क्या नाम लेते हैं, बस मैं यहाँ एक दवाइयों की फैक्ट्री के चक्कर में आ गया था। अच्छा। अच्छा, वो पार्टनर ने जो है मेरे को नुकसान बहुत दे दिया।
बस इस वास्ते जो है फिर मैं दोबारा वहाँ कंपनी, असल में गलती मेरी थी, मैं रिज़ाइन कर आया था कंपनी से। अच्छा। अगर कंपनी से रिज़ाइन ना करता, छुट्टी ले लेता, हाँ जो मेरे को अकल होती, हाँ। तो मैं दोबारा कंपनी चला जाता, क्योंकि मैंने फरीदाबाद में प्लॉट वगैरह सब ले रखा था। अच्छा। बस वो बस बैड लक। बोले तो। और दूसरा मगर जब आपने स्क्वाड में ज्वाइन किया, क्या काम था आपका वहाँ पे? हमारा जो काम था, बस उस टाइम तो वर्कर थे थोड़े, तो हमारा सभी काम चलते थे। बहुत से टाइम में टूल ग्रिप होता था, मतलब जिसमें औजार वगैरह रखे, स्टोर था, उसमें भी काम करना पड़ा था। अच्छा। और ट्रैक्टर का भी काम करना पड़ा था। जो सबसे पहले आपने यहाँ पे फोटोज कुछ लगाई हुई है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜਾ 3600 ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ 3610 ਦਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ 3600 ਫੋਰਡ ਦਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਨੇਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੋਰਡ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ कंपनी दिया। हमारे टाइम में जो था ना जी, हाँ, हमारे टाइम में एस्कॉर्ट 27, एस्कॉर्ट 37, अच्छा, एस्कॉर्ट 47, अच्छा, और सन 1968 में आया था फोर्ड, इंग्लैंड से। हाँ, बल्कि एक फोर्ड तो मैं ग्वालियर से लेकर आया था, आप खुद जाके? खुद, मतलब कंपनी ने भेजा था। हाँ। कंपनी ने ही मंगाया था, तो वो इम्पोर्टेड फोर्ड था। कौन सा मॉडल था वो मॉडल जो है मेरे ख्याल में 68 ही था, 68 ही था। अच्छा, नहीं, 68 हो या 69 हो। 3000 फोर्ड था या कोई और? फोर्ड 3000। फोर्ड 3000। उस टाइम फोर्ड 3000 था। ये फोर्ड 3600 जो है, ये 1976 में आया। अच्छा। और 1975 तक मेरे ख्याल में अक्टूबर तक शायद है ये यही रहा, फोर्ड 3000। 3000 ही। हाँ। तो आपकी आंखों की रोशनी की बात करें, ये कब? ये तो अभी थोड़े दिन से ख़त्म हुई है, 10-12 साल से। अच्छा। हाँ, इससे तो पहले मैं ठीक था। अच्छा, अभी आंखों की रोशनी के बिना भी ट्रैक्टर की रिपेयर कर देते? हाँ, ट्रैक्टर मतलब साथ में काम कर देता हूँ। जैसे वैसे हाथ से मेरे को सब पता लग जा। हाँ। जैसे मतलब कोई पार्ट है हाँ। ट्रैक्टर में फिट हुआ, हाँ, वो आप हाथ लगा के बता सकते हो कि हाँ। कौन सी कंपनी का है, क्या है? कंपनी तो नहीं पता लगनी, पर ये है कि ये हो जाएगा, ये सही है कि गलत है। गलत है, हाँ, क्या इसमें सेटिंग प्रॉब्लम है? इसकी सही आ रही कि नहीं आ रही। ये हाँ। एक मैंने आपका किस्सा सुना था दिल्ली में ही, हम्म। कि आपने स्टीयरिंग की असेंबली को मतलब अपने मतलब आंखों की रोशनी के बिना आपने असेंबल करके बता दिया था कि कैसा क्या हुआ था वो ऐसा है ना, असेंबल तो हम कोई भी चीज़ हो, असेंबल तो हम अपना आप ही कर लें। इसमें सिर्फ हमें तो सेटिंग ही देखनी हो। दोनों चीज़ फंसाने के बाद में पहले राड सेट करेंगे हम, और राड सेट करने के बाद में फिर उनके जो वो फूल वगैरह हैं वो फंसा के और उनकी सेटिंग देख लेंगे लेफ्ट राइट की, कि उसकी सेटिंग सही चल रही है या नहीं चल रही, बस। और क्या, और साइड प्लेट देख लेंगे, साइड प्लेट कितनी है, कितनी हमें चाहिए। वो अभी भी आप कर देते हो ऐसा? हाँ, ये तो काम है, क्योंकि यहाँ पे पहले, अब तो ये सारे काम मैकेनिक अलग अलग करने लगे। पहले जो यहाँ शामली में मैकेनिक स्टीयरिंग वगैरह फिट नहीं करते थे। अच्छा। सिर्फ हम उसको खोल देते थे। अच्छा। लेथ वाले से हम काम करा लेते थे, बुश वगैरह की फिटिंग वगैरह, हाँ, जो उसमें रैमर वगैरह जो कराना होता था। हाँ। उसके बाद सेटिंग हम अपना आप ही करते थे। ठीक है। हाँ। स्क्वाड में आपने मतलब असेंबली का काम भी किया ट्रैक्टर का कुछ? हाँ, असेंबली भी करा, गेयर बक्सा भी करा, जॉइंट भी करे। अच्छा। हाँ, मतलब बहुत सी दफ़ा ऐसा है, और लोग जो है उसे कंप्लीट कर रहे गियर बक्से को, और हम उसे जो है जॉइंट कर रहे काम हमने, मतलब टोटल। क्योंकि हम जो थे ना, हम तो फील्ड के, आप समझो कि गाड़ी का जो काम है, जब हम लीलैंड और टाटा का काम करते थे और इंजन से लेके पीछे तक का काम करते थे, तो ये समझ लो कि हम तो, बल्कि कंपनी ने इसी बात के ऊपर हमें 3 महीने बाद हमें 90 दिन में परमानेंट कर दिया था। अच्छा। और 3 इंक्रीमेंट दिए थे उन्होंने हमें। अच्छा। क्योंकि उस टाइम सैलरी जो थी ना हमारी 115 रुपये कुल थी। अच्छा। हाँ,
इस तरह का आपका रहा तजर्बा हाँ। के साथ? क्योंकि हम तो मार्केट में जो जो मार्केट में हाथ से काम कर लेगा वो किसी भी उसमें वो नहीं। अब हमें कोई भी आप इंजन दे दो जो हमने कभी देखा ही नहीं, ऊपर वाले का ही इतने है और इतनी वो है कि हम उसे बिल्कुल सही कोशिश करेंगे बांधने की। अच्छा। हाँ और विश्वास भी है मन में कि वो बांध दोगे आप? हाँ 100%। हाँ, हाँ कोई सा भी हो। कोई सा, पहले तो मैं पेट्रोल का काम भी करता था। अच्छा। क्योंकि हमने फर्गूसन ट्रैक्टर जो था शुरू में वो पेट्रोल पे स्टार्ट होता था और मिट्टी के तेल से चलता था। चलता था बिल्कुल। अच्छा जी, तो हमने तो उसका भी काम करा। अच्छा। और उसके जब ये फेल हो गए हमने यहाँ उनके ऊपर आइशर के इंजन फिटिंग भी करके दिए। अच्छा, ऐसा काम भी आपने? हाँ हाँ हाँ, गेयर बक्से में स्पीड भी बढ़ा के दी, क्योंकि ऐसा है ना फील्ड में। अभी आपको ऐसा है लगता है कि आपको अगर कोई किसी मतलब फोर्ड का ही इंजन हो, 3600 का हो, हाँ कोई भी XYZ कोई सा भी हाँ, इंजन कोई हो। भी हो, हाँ आप उसको ट्रैक्टर का इंजन का काम कर दोगे अभी आज की कंडीशन? हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा। चाहे इंजन वो 4 सिलेंडर हो, क्योंकि एक दफ़े सन 65 की लड़ाई से मैं ये वो फोर्ड 4000 आया था, 5 ट्रैक्टर खड़े थे इसमें मायापुरी में। अच्छा, वो आपने रिपेयर किए? हाँ, जो यहाँ हमारे यहाँ आया था एक ट्रैक्टर, हमने उसे रिपेयर किया। बल्कि जो आज सिस्टम ब्रेक का इनमें आया हुआ है ना, फार्म ट्रैक 60 में 70 में, वो सिस्टम फोर्ड 4000 में इंग्लैंड से आया था। अच्छा। हाँ वो ब्रेक सिस्टम, वही सिस्टम चल रहा है? हाँ हाँ वही सिस्टम। ड्राइंग तो कम से कम ट्रैक्टरों की मिलती जुलती सी है पूरी की पूरी। हाँ, किसी में मतलब कोई चीज़ किधर से लगा दी जो किसी में आज की डेट में जैसे आज आप रोजाना यहाँ पे आते हो, हाँ तो अगर कई बार आप अकेले होते हो यहाँ पे वर्कशॉप में, वो दिक्कत पड़ जा फिर दिक्कत पड़ जाती है? हाँ, ये अकेले में नहीं कुछ काम होता अब। नहीं होता? हाँ हाँ सो वीरो ये तो सीगी। क्योंकि ऐसा है ना, मेरे को सुराख वगैरह नहीं दिखाई देते उसमें, फिर हाथ उससे लगा के मतलब हो तो जावे मगर उसमें जो है फिर मतलब भरोसा नहीं होता, तसल्ली नहीं होती, तसल्ली नहीं होती। असेंबल हो सकता है कोई, हाँ ऐसी दिक्कत नहीं। असम्बल सब चीज़ हो जाएगी। हाँ पूरी सेटिंग नहीं हो पाएगी। हाँ पूरी मतलब वो नहीं दिखाई देना कि वो कुछ मैंने काफ़ी टाइम से जो है, फिर जब से ये काम करने लगा था ना, फिर मैंने जो है मतलब बस इसी की हेल्प में लगा रहा हूँ मैं। अच्छा, एज ए हेल्पर। अच्छा कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपके बेटे को कोई काम नहीं आता, हाँ तो आप बताते हो? हाँ क्यों, आज की डेट में भी होता है ऐसा? हाँ हो जा बहुत सी दफ़े यो मतलब भाई इसके कोई बात दिमाग में नहीं आती। अच्छा मेरे को तो मतलब मैं तो थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी, क्योंकि मेरे को काशीपुर में जब इनका स्कूल था ना, काशीपुर मैंने ट्रेनिंग करी, वो मेरी पिक्चर जो है घर पड़ी। अच्छा। वो शायद है 97 में ट्रेनिंग में गया था या मैं 69-70 में गया था। अच्छा। तो इन्होंने जो है 90 दिन का कोर्स कराया था एस्कॉर्ट ने? हाँ, काशीपुर में इनका कॉलेज था, 2200 एकड़ ज़मीन थी इनकी एस्कॉर्ट्स की, और कंपनी के खर्चे पे ही मैंने ट्रेनिंग करी। अच्छा। हाँ वहाँ पूरा ट्रैक्टर, बल्कि उन्होंने तो हमें परकिन की भी ट्रेनिंग दी थी, जो मैसी में परकिन इंजन आते थे पहले, उसकी भी हमें पूरी ट्रेनिंग दी थी उन्होंने। मिस्टर डेविड जो थे वो हमारे प्रिंसिपल थे। अच्छा। हाँ उससे पहले अंग्रेज़ थे। अच्छा। जो हमें फोर्ड के बारे में बता हुए थे, तो वो अंग्रेज़ तो उन्हें बतावे थे जो वहाँ पे पहले टीचर थे, वो टीचर फिर हमें पढ़ावे थे फोर्ड के बारे में। मतलब उनके अंडर आपने ट्रेनिंग की हुई है? हाँ 90 दिन का कोर्स करा हुआ, 3 महीने रहा मैं वहाँ काशीपुर। अच्छा। हाँ। क्या क्या पढ़ाया था उन्होंने, मतलब इंजन के उन्होंने रिलेटेड आगे से पीछे तक सब पढ़ाया। अच्छा। एक इलेक्ट्रिक आइटम छोड़ के। अच्छा। उन्होंने मतलब इंजन के बारे में भी, ट्रांसमिशन के बारे में भी, गियर बक्से के बारे में भी, हर चीज़ के बारे में कि एक्सल जो है ये किस मटेरियल से बनता है, इसे हम कैसे देख सकते हैं, हार्डनेस वगैरह कैसे वो हो गए, उन्होंने सब समझाया था उस टाइम। अब मार्केट में तो ये सब चीज़ होती नहीं ना, होती नहीं है। हाँ हाँ मार्केट में तो ये है लिया, हाँ आपने बांध दिया, बस निपटा दिया था। हाँ
कंपनी में तो हर चीज़ चेक हो गया। और हमारी इस कंपनी में तो क्या नाम लेते हैं, हर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट अलग अलग है। पहले जो सामान आवेगा वो रिसेप्शन पे आवेगा, उसके बाद में फिर वो इंस्पेक्शन पे जावेगा, फिर वहाँ से रिजेक्ट या पास होने के बाद में फिर वो स्टोर जावेगा, स्टोर से फिर लाइन के लिए इशू होगा। ਬਿਲਕੁਲ ਅਭੀ तो ज़्यादा सिस्टम हो गया है। ਸੋ ਵੀਰੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। नमस्ते अंकल जी, धन्यवाद आपका। अरे नहीं, मेरा क्या दर, आपका एहसान है, आप लोगों के दर्शन हुए।